Good morning, dear student. How are you, dear student? I think all of you will be fine at your home. Dear student, I hope all of you will be understanding well what am I teaching. But dear student, if any of you will have any doubt, then you can direct call to me or you can send your message on my personal WhatsApp. Dear student, if you have any doubt related to maths, physics or chemistry, then you can send your message on my personal WhatsApp. You can also direct call to me, dear student. Dear student, today I am going to explain exercise 8.1, question number 2nd. Dear student, in previous video, I explained the basic concept of trigonometry, and I think, dear student, all of you will be understanding well what I was teaching in that video. Okay, dear student, I am going to explain question number 2nd, which I have written here on the board. Let's understand. Okay, dear student, I have written this question here. Exercise 8.1, question number 2nd. What is question, dear student? In adjoining figure, find tan p minus cot r. Dear student, figure is given here. In triangle PQR, PQ is what? 12 centimeter and PR is 13 centimeter. Angle Q is 90 degree. This is right angle triangle. Right angle triangle PQR, in which PQ is 12 centimeter and PR is 13 centimeter is given in question in this figure. So dear student, we have to find tan p minus cot r. Dear student, we have to find tan p minus cot r. Okay, dear student, let's understand how will you solve this question. Dear student, in this triangle, PQ is 12 centimeter and PR is 30 centimeter, but QR is not given. Therefore, dear student, with the help of Pythagoras theorem, we will find the value of QR. Okay, dear student, I think all of you will know what is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या होता है डियर स्टूडेंट? हमने बताया था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बताया था पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है डियर स्टूडेंट? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके डियर स्टूडेंट, H is what? Hypotenuse. P is perpendicular and B is what? Base. तो डियर स्टूडेंट, इस ट्राइंगल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो साइड नहीं दिया हुआ है उसे हम फाइंड करेंगे. QR फाइंड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इन ट्राइंगल PQR hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. Yes, but you know all. H means hypotenuse, P means perpendicular, and B means base. Hypotenuse, what will be here? PR square. Perpendicular will be what? PQ square. Base is what? QR. Yes, sir. What is PR? Value of PR is 13 centimeter, 13 square, and PQ is what? 12 square plus QR square. Okay, dear sir. 13 square. Square of 13 what will be? 169. 12 square 144 plus
क्यू आर स्क्वायर। ये स्टूडेंट, तो अब क्या करेंगे, 144 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, 169 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 144, दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्यू आर स्क्वायर। पकड़िए स्टूडेंट, अब यहाँ से ऐसे सॉल्व करते हैं, 169 माइनस 144 क्या आ जाएगा, 25, 25 इक्वल टू व्हाट, क्यू आर स्क्वायर। Therefore 5 इक्वल टू व्हाट, क्यू आर स्क्वायर रूट निकाल देंगे 25 का, इसका मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर क्यू आर। द वैल्यू ऑफ क्यू आर इज व्हाट, 5 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 5 सेंटीमीटर। एक मिनट, अभी तक हमें क्यू आर नहीं मिला था, लेकिन अभी हमने जस्ट वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हमने पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से क्यू आर फाइंड कर लिया एंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर इज व्हाट, 5 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस ट्राइंगल पी क्यू आर हमें पी क्यू इक्वल टू क्या मिला, 12 मिला, क्यू आर इक्वल टू क्या मिला, पी क्यू इक्वल टू 12, दैट इज ऑलरेडी गिवन एंड पी आर इज ऑल्सो ऑलरेडी गिवन, बट जस्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर with the help of Pythagoras theorem, and value of QR is what, 5 centimeter. The value of QR is 5 centimeter. Dear student, इस ट्राइंगल के तीनों साइड का हमें वैल्यू मिल चुका है, PQ 12 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर एंड PR 13 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन, व्हाट इज आवर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा क्या है, what we have to find, question, in adjoining figure find tan p minus cot r। हमें tan p minus cot r का वैल्यू फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। तो ऐसा करते हैं डियर स्टूडेंट, tan p minus cot r का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको इरेज कर देता हूँ डियर स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट, हमने बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, एक बार और बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं डियर स्टूडेंट, हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर 6। फर्स्ट व्हाट इज साइन, सेकेंड कॉस, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम एंगल, जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के हम लिखेंगे, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। मान लीजिए हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए लिख देंगे यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, बताया था हमने। कॉस उल्टा जो होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज कॉट। और हमने ये भी बताया था कि इनका एक जो वैल्यू होता है, हमने बताया था ना फॉर्मूला पिछले वीडियो में, PVP/HHB। P means perpendicular, B means base, H means hypotenuse। तो ये स्टूडेंट, ये जो पहला रेशियो होता है P और H जो होगा, P/H, वो किसका वैल्यू होगा, साइन का, और B/H जो होगा वो क्या होगा, B/H कॉस का होगा, और tan जो होगा P/B हो जाएगा, tan जो होगा P/B हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ये tan का जो उल्टा होता है, तो ऑन में डियर, साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसका तो साइन जो है P/H है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस B/H है, तो सेक जो हो जाएगा H/P। इन प्रीवियस वीडियो डियर स्टूडेंट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। tan क्या है, P/B है, तो इसका मतलब कॉट जो हो जाएगा B/P। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक all of you must have understood what I am teaching here. Sin, P/H cos, B/H tan, P/B cot, B/P
सेक एच बाई बी कोसेक एच बाई पी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान भरा भरा। ये ट्रिक है इसका याद करने का, आप लोग इसको जैसे भी चाहे वैसे याद कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी फॉलो कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसे याद रख सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन का वैल्यू क्या होता है? पी बाई एच। पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेनस। कॉस का वैल्यू क्या होगा? बी बाई एच। बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइपोटेनस। टेन पी बाई बी कॉट, बी बाई पी सेक, एच बाई बी कोसेक, एच बाई पी। हमने ये बताया था कि इसको सीक्वेंस में याद रखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे और सीक्वेंस में ही प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे साइन के बाद कॉस लिखेंगे, फिर कॉस के बाद टेन लिखेंगे, टेन के बाद कॉट लिखेंगे, कॉट के बाद सेक लिखेंगे, सेक के बाद कोसेक लिखेंगे, और उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट लिख देंगे डियर स्टूडेंट। और बाकी का जो साइन है पी बाई एच, कॉस जो है बी बाई एच, और टेन जो है यहाँ से पी बाई बी लिख लेंगे, बाकी सबका उल्टा करके लिख देंगे। साइन पी बाई एच है तो एच बाई पी लिख देंगे कोसेक। कॉस जो है बी बाई एच है, इसका उल्टा सेक होता है तो इसको उल्टा कर देंगे, बी बाई एच है तो एच बाई बी लिख देंगे। टेन पी बाई बी होता है, उसका उल्टा कॉट होता है, तो पी बाई बी है तो इसका उल्टा बी बाई पी हो जाएगा। बस ये स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ये तो हमें मालूम है, ऑलरेडी वी नो दिस डियर स्टूडेंट। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड करना है टेन पी माइनस कॉट आर। ये तो डियर स्टूडेंट हमने समझाया है आप लोगों को, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया है। हमारा क्वेश्चन ये है फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। तो अभी हमने यहाँ पे जो सॉल्व किया था, यहाँ पे क्यू आर निकाला था, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। टेन पी माइनस कॉट आर, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, गिवन है, जिसे पी आर 13 गिवन है और पी क्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है। क्यू आर नहीं गिवन था, दैट वाज नॉट गिवन, बट जस्ट वी गॉट वैल्यू ऑफ क्यू आर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हमने क्यू आर फाइंड किया। डियर स्टूडेंट, अब इस समय हमें इस ट्राइंगल के तीनों साइड का वैल्यू मालूम है। अब हमें क्या फाइंड करना, व्हाट वी हैव टू फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी माइनस कॉट आर, डियर स्टूडेंट, टेन क्या होता है? व्हाट इज टेन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन? टेन मीन्स पी बाई बी। tan means, dear student, look here, tan a, tan का वैल्यू क्या होता है? p बाई बी। p मतलब परपेंडिकुलर, b मीन्स बेस। तो डियर स्टूडेंट, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? p की ना। तो p के लिए एक बात बताइए आप, हमने बताया था कि मान लीजिए हमें इस एंगल की बात कर रहा है ना, p एंगल का, एंगल p की बात कर रहा है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था जिस एंगल की बात करेंगे तो उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल पी की बात करेंगे तो इसके सामने वाला साइड क्या है? क्यू आर है, तो क्यू आर हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर एंगल पी की बात करेंगे तो क्यू आर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो साइड है, लॉन्गेस्ट साइड, तीसरी साइड, ये क्या होती है? हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस होता है, पता ही है। और ये स्टूडेंट, इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर हो गया साइड, ये साइड परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो बची हुई साइड क्या होगी? ध्यान रखना आप ये स्टूडेंट, ये जो साइड होगा PQ, ये बेस होगा कि नहीं होगा? होगा बेस। ये स्टूडेंट ध्यान से समझना हमारी बात। tan P कौन सा एंगल की बात कर रहा है? P का। जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाली साइड, उस एंगल के सामने वाली साइड, एंगल P के सामने वाली साइड क्या है? क्यू आर, और यही सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड मतलब ये पी आर सबसे लंबी साइड है, वह क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, वो हाइपोटेनस होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये बचा हुआ साइड क्या होगा? बचा हुआ साइड बेस होगा। तो इसका मतलब एंगल P के लिए बेस हो गया PQ और QR हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया 13 सेंटीमीटर PR। PR जो हो गया हाइपोटेनस। अब इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। tan P, तो डियर स्टूडेंट लुक हियर, tan का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो कौन सा एंगल की बात हो रही है? पी का। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? क्यू आर। क्यू आर जो होगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे डियर स्टूडेंट ध्यान देखिए, यहाँ पे tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लुक हियर डियर स्टूडेंट, tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। कौन से एंगल के लिए? एंगल पी के लिए। तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर, और बेस क्या है? पी क्यू। बात समझ आ गई हमारी? अब चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस है तो माइनस है। अब हमने अभी तक एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस पता किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा है? एंगल आर, कॉट आर की वैल्यू निकालना है। तो यह कौन से एंगल को बता रहा है? एंगल आर का। तब एंगल आर के लिए अब जरा ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे लुक हियर, कॉट का फॉर्मूला, कॉट इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लुक हियर डियर स्टूडेंट, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कौन से एंगल की बात हो रही है? आर की। इसका मतलब एंगल आर के लिए पता करेंगे हम क्या? बेस और परपेंडिकुलर। अभी तक हमने क्या पता किया डियर स्टूडेंट? किस एंगल के लिए? एंगल पी के लिए पता किया, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब हम एंगल आर के लिए पता करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब जरा ध्यान देखना डियर स्टूडेंट, एंगल आर के लिए बात अगर हो रही है, एंगल आर ये है ना, अगर एंगल आर की बात हो रही है डियर स्टूडेंट, तो हमने ये बताया था आप लोगों को कि जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो कौन सा एंगल की बात कर रहा है? एंगल आर के। तो एंगल आर के सामने वाली साइड ए, ये पी क्यू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी क्यू परपेंडिकुलर। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेनस। और डियर स्टूडेंट ये तो परपेंडिकुलर हो गया एंगल आर के लिए, ये साइड पी क्यू, और ये हाइपोटेनस है लॉन्गेस्ट साइड। तो जब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर मालूम हो गया तो बचा हुआ साइड क्या होगा? बेस होगा। इसका मतलब ये बेस हो गया। अब एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू हो गया, हाइपोटेनस पी आर हो गया, और बेस क्या हो गया? क्यू आर हो गया। ये हमें मालूम चल चुका है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का यहाँ से लुक हियर डियर स्टूडेंट, कॉट, कॉट मीन्स बी अपॉन पी। बी मीन्स बेस, पी मीन्स परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल आर के लिए बेस क्या होगा? बेस जो होगा क्यू आर होगा, और एंगल आर के परपेंडिकुलर क्या होगा? पी क्यू होगा। बात समझ आ रही होगी डियर स्टूडेंट? अब वैल्यू पुट कर देते हैं डियर स्टूडेंट। क्यू आर, क्यू आर क्या है? 5। अब पी क्यू कितना है? पी क्यू 12। अब क्यू आर कितना है? 5, और पी क्यू कितना है? 12। बात समझ आ रही होगी? अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट करके आ जाएगा 0। इसका मतलब डियर स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ tan p minus cot r is what? 0. Dear student, I have explained this question, dear student, and I hope that all of you must have understood this question. But dear student, if any of you will have any doubt, then you can direct call to me, or you can send your message on my personal WhatsApp. Dear student, इसमें कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को सिर्फ हमने बहुत ज़्यादा समझा दिया है। ये सब तो क्या है, ये तो पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन तो हमारा सिंपल सा यही है कि एक फिगर गिवन है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू गिवन था 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर गिवन था, क्यू आर नहीं गिवन था। तो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हमने क्या फाइंड कर लिया? क्यू आर फाइंड कर लिया। अब हमें जब क्यू आर 5 सेंटीमीटर मिल गया, अब इस ट्राइंगल पी क्यू आर के तीनों साइड मालूम हो चुके हैं, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन क्या है? tan p माइनस कॉट आर। तो tan p माइनस कॉट आर। अब यहाँ पे एंगल देखिए, tan p, यहाँ पे एंगल p की बात कर रहा है और यहाँ पे एंगल r की बात कर रहा है डियर स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे फार्मूला।
डियर स्टूडेंट ये फार्मूला आप लोग यू कैन मेक प्रैक्टिस, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो हमने पिछले वीडियो में ये समझा दिया था। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से tan का फार्मूला रहेंगे। tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से एंगल के लिए, एंगल पी के लिए। तो एंगल पी के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। और उसी तरह से कॉट आर, तो कॉट का फार्मूला हम देखेंगे यहाँ से डियर स्टूडेंट, कॉट का हियर डियर स्टूडेंट लुक हियर, कॉट का फार्मूला यहाँ से कॉट इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एंगल आर के लिए हम क्या करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पर रख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे, दैट इज आवर आंसर। तो डियर स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को, आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन डिटेल। सो डियर स्टूडेंट I think no any doubt should be in this question, but if you have any doubt, no problem, call me, and or you can send your message on my personal WhatsApp. Dear student, if you like my video, dear student, then please subscribe, share and like also. Okay dear student, watch this video at least 2 or 3 times for better understanding, dear student, and make practice of this concept, this formula, arithmetic ratio. Okay dear student, watch carefully, and there are many questions which I have given in NCERT and also RS Agarwal. Solve questions and make practice, and if you face any problem, then you can direct call to me or send your message on my personal WhatsApp. Okay dear student, thank you so much.